Okay, students, so let's start with the sixth lecture, okay, of class 11. Okay, so we have seen various numericals last day, and we will be doing many more numericals. Before doing that, let's do one of the most important topic. We call it as graphs. How to apply graphs in our kinematics, not in kinematics, in 2D motion or in any other chapters. Okay, so this class can be one of the most important class. Before doing this class, I will prefer students to go through class 1, class 2, class 3. First class, second class and the third lecture are the three most important lectures. So if anyone is directly going into lecture 6, I prefer not to do it. Go through 1, 2, 3, 4, 5. In this way, you come to the lecture 6. So already those who have done the lectures, okay, let's do it. Okay, we know many things. So first of all, we have learned what is straight line. Yes, we have learned, sir, how to draw. We have also understood. And from the very first class, what I am trying to say is, suppose if a curve is something like this, okay, then slope. What is the slope? Slope is nothing but dx by dt at every point. Yes, you are correct. Now, what sort of curve is this thing, sir? What sort of curve? It can be any sort. Now, first, if we assume that x is proportional to t square. Now, this is very, very interesting. X is proportional to t square. Just assume this thing, okay? It may not happen. If I assume this thing, x is proportional to t square, then x is given by some constant into t square. Yes, perfect. Now, this sort of thing is termed as parabolic equation. This sort of thing is termed as parabolic equation. Okay, sir, then what comes out to be dx by dt? Now you know velocity instantaneous is given by dx by dt, and in this case the constant, let it be as constant, it's t square, then it becomes 2t. So velocity instantaneous become twice kt. Velocity instantaneous become twice kt. Okay, velocity instantaneous becomes what? Twice kt. Over here we have something. So if I want to draw a time and velocity instantaneous curve, it will be something of this sort. Now, if I want to have the acceleration is nothing but dv instantaneous by dt, dv instantaneous by dt. So in this case, what is v instantaneous? Twice kt. So differentiation of twice kt. Twice k is constant, it goes out of the equation. It dt by dt, it's 1, so it's 2k. So in this case, the acceleration happens to be constant. The acceleration happens to be constant. Now, what is the value of the constant? It's 2k. Now, sir, how can you say this is proportional to t square? No, I can't say. I have assumed. Now, check it out. I have written over here, let us assume this saying, x is proportional to t square. Okay, so this is one example I have shown you. If x is proportional to t square, then what will be the nature v will look like? What will be the nature acceleration will look like? But I won't do the same scenario every time. I will do it in a different way. Okay, so we have to remember something very interesting. This is the very basic things we have understood. From the next board, we will do it in a different fashion. Okay? Chalo, let's do it. Only one thing you should keep in mind. If this is square, if I differentiate it once,
it will be linear. It will be linear. Linear means a straight line. If I differentiate it another once, it will become a constant. If I differentiate it once, if I differentiate a constant, it gives me 0. If I differentiate a constant, it gives me 0. Okay. So fine. Let's check on to the next board in general thing. Now, sir, do something interesting, okay? Suppose this is x, this is y. If I draw something like this, if I draw something like this and I've assumed what y is proportional to x square. So if I have another curve with x, and right now it will be dy by dx. So if I do dy by dx, it will be proportional to only x. Okay, only x. So that means it's a straight line passing through the origin. If I another do one more thing, x with d2y dx2. Now what is this thing? d2y dx2. Now if I differentiate this thing once more, d2y dx2, it will be proportional to 1, means this is actually a constant. Now if I differentiate the constant further, if I differentiate the constant further, it will give me 0. So this is the basic thing. This will give me a straight line, and if I differentiate another time, that means d3y dx cube, it will give me 0. It will give me 0. Now inverse is also true, means if I differentiate, I will get from this curve to this curve, this curve to this curve, this curve to this curve, and if I integrate, I will get from this curve to this curve, this to this, this to this. See, they are all connected. If I know from here to here, here to here, here to here, I must know from here to here, here to here, here to here. So they are all connected. So you should keep in mind the concept of slope. The concept of slope. Okay. So another one, let's check it out. I am showing you each and everything so that you won't get confused. Everything I will show. Sir, take another curve. एक और कर्व ले लेते चलिए सर. ऐसा कर्व का क्या मतलब हुआ? हाँ, ये वाला बहुत क्वेश्चनेबल है कि सर ये इसका क्या मतलब हुआ? x और t. चलो मैं x और t के हिसाब से तुमको कर लेता हूँ. x और t, इस कर्व का मतलब क्या हुआ? जैसे फर्स्ट क्लास, पहला क्लास में मैंने किया था, याद है तुमको, as t increases slope decreases किया था ना. और एकदम इस पॉइंट में जाके अगर तुम स्लोप करोगे, एकदम इस पॉइंट में जाके, एकदम इस पॉइंट, मतलब सोचो यहां पर मैं बता रहा हूं t equals to t naught, at t equals to t naught, dx by dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा, because it's a straight line parallel to which axis? Time axis. इसका मतलब, इसका याद करो, हम लोग फर्स्ट क्लास, ये सब कुछ हम लोग फर्स्ट क्लास में किए थे कि dx by dt का वैल्यू ग्रेटर देन 0 था. हाँ सर 0 था, and it decreases to 0, and it decreases to 0. तो सर एक काम करो, एक ऐसे ही कर्व तैयार करो, t को यहां पर रखो और यहां पर dx by dt को रखो. सो अब सर इसका एक पॉजिटिव वैल्यू है. हाँ, ये तुमको मैं एक चीज मैं तुमको बता रहा हूं भाई, ये चीज तुम याद करो, ये पैराबोलिक नेचर है. ये पैराबोलिक कैसा कर्व दिखता है भाई, ये अलग बात, वो तो डिफरेंट है कैसा कर्व दिखता है, बट इसका नेचर है पैराबोलिक. मतलब x is related to something, not only t square, some t can also be there, means x can be given as, चलो मैं तुमको एक फॉर्म दिखा देता हूं, पैराबोलिक नेचर का फॉर्म. ये हुआ तुम्हारा पैराबोलिक नेचर का फॉर्म. ठीक है. अब
क्या है, क्या वैल्यूज है, ये तुमको जानने की कोई जरूरत नहीं, अभी तक कोई जरूरत नहीं। ओके, हम लोग सिर्फ इसी कर्व को, हाँ हमको पता है कि भाई सर x को दिखता कैसा है, x दिखता ऐसा है, ये कर्व का नेचर ऐसा है। तुम्हें एग्जैक्ट इक्वेशन अभी पता करने की कोई जरूरत नहीं, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो इसको पता, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे कि dx by dt ऐसे अगर करोगे तो a का वैल्यू a ही रहेगा, t स्क्वायर को क्या रहेगा 2t आएगा, हाँ सर, b की तरफ रहेगा और t का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस क्या आएगा 0। तो ये देखो सर, ये क्या हुआ, हाँ सर मुझे पता है, ये हुआ आपका वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, यस सर। ये देखो ट्वाइस at प्लस b, ये किस चीज का इक्वेशन है सर, ये किस चीज का इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और फर्स्ट क्लास में हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ा था कि ये ग्रेटर देन 0 है एंड ये डिक्रीजेस टू 0। पहला ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये आई से कहां पर आ रहा है, ये आई से 0 पर आ रहा है। तो सर कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, सोच लो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी यहां पर होगा और आई से कहां पर होगा, सर 0 पे डिक्रीज होके आ जाएगा। तो ये हुआ आपका dx by dt का कर्व। और अगर तुम इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे, अब एक लॉजिकली तुम मुझे एक चीज बताओ, लॉजिकली बताओ कि सर when velocity instantaneous decreases, अगर तुम्हारा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है भाई तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सर लॉजिकल है सर, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव होगा, परफेक्ट, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक टाइम में यहां पर दूंगा और एक्सेलरेशन में यहां पर दूंगा, वो इट विल टेक अ व्हाट वैल्यू, इट विल टेक अ नेगेटिव वैल्यू। सर यहां पर देखो एक्सेलरेशन बन गया dv by dt, तो ये बन गया आपका 2a। अब तुम्हें तो यहां पर a का वैल्यू नहीं पता था क्या a का वैल्यू नहीं पता था, तो इसका मतलब a का जो वैल्यू होना चाहिए, ये इसका a का वैल्यू क्या होना चाहिए, a का क्या वैल्यू होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि अगर a नेगेटिव होगा तभी तो ये नेगेटिव ही होगा। यस, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं, बट इतना तो पता चल गया कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, b का वैल्यू क्या होना चाहिए अभी तक हमको नहीं पता, बाद में करेंगे। ओके, सो ये हुआ ये वाला कर्व का वेलोसिटी ऐसा, एक्सीलरेशन नेगेटिव। ओके, नाउ एक और कर्व हम लोग करेंगे, चलो देख लेते। अब हम लोग जो करेंगे ये सारा एक प्रोसेस में इतना सारा कुछ नहीं दिखाऊंगा, पर तुमको समझना पड़ेगा कि हाँ ये पैराबोलिक नेचर है और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये नेगेटिव। अब तुमको पता चलेगा कि कैसा कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है। सर सिंपल सी बात है, तुम वेलोसिटी को देखो, जस्ट चेक द वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी कहीं से इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी कहीं से डिक्रीज कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। चलो लेट्स डू इट। So, first of all, what we have learned, सर हम लोग ये पढ़े थे v is equals to u plus at। हाँ ये पढ़े थे ना सर, u कुछ भी हो सकता है, u can be positive, it can be negative। हाँ u कुछ भी हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। चलो एक एग्जाम्पल लो, let u is equals to 50 और एक्सीलरेशन का वैल्यू है +10, तो वेलोसिटी का क्या वैल्यू आएगा, पहला आएगा 50, फिर आएगा 60, फिर 70, डॉट डॉट करके जाएगा। सर इसका जनरल एक्सप्रेशन बताओ, जनरल एक्सप्रेशन कैसा होगा, 50 + 10t, ये देखो v का जनरल एक्सप्रेशन। सर इसका मतलब अब ये नंबर को देखो, एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या था, पॉजिटिव था, u क्या था, पॉजिटिव था, तब वेलोसिटी इंक्रीज। सर वेलोसिटी इंक्रीजेस। इसका एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल बताइए सर, रियल लाइफ में। हाँ मैं बता रहा हूं, सोच लो ये t = 0 है, t = 0 मतलब जब तुम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तब ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी एक u है और एक्सीलरेशन किस तरफ है, इस तरफ है, और एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो सर एक काम करते, चलिए सर वेलोसिटी का कुछ इक्वेशन निकाल लेते। चलो सर एक काम करो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया u का वैल्यू +50 है,
तो सिर्फ वेलोसिटी का कर्व ड्रॉ करो और कुछ नहीं। चलो सर करते हैं वेलोसिटी का कर्व। कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का है, रूल क्या है, जब t 0 होगा v का वैल्यू होगा 50, जब v 0 होगा t का वैल्यू होगा -5। तो सर -5 को मत रखो, यहां से ऐसे कर दो, ये 50 ये -5 डॉटेड लाइन, ये हुआ आपका v और t का रिलेशन। और तुमको तो ये पता ही है कि दूसरा कर्व में अगर टाइम के साथ तुम एक्सीलरेशन को प्लॉट करो तो ये आएगा एक कांस्टेंट, ये आएगा कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा 10, कांस्टेंट आएगा 10। अब क्वेश्चन है सर आपने वेलोसिटी का कर्व ड्रॉ कर लिया, एक्सीलरेशन का कर्व ड्रॉ कर लिया, वेलोसिटी इंक्रीजेस, ओके। अब लॉजिकली एक और चीज हम लोग करेंगे। नाउ वी विल से समथिंग अबाउट स्पीड। स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज ओनली द magnitude of the velocity. Speed is only about the magnitude of the velocity. It can never be negative. सर ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, याद रखो। तो अगर तुमको मैं बोलता हूं भाई सर इसका स्पीड का कर्व ड्रॉ करो, स्पीड और टाइम का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही कर्व को देखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। सर ये भी तो पॉजिटिव में है, हाँ तो ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में ही होगा। बट अभी क्वेश्चन है, आपने अभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कर्व नहीं ड्रॉ किया, अब हम लोग वो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने क्या देखा, सर u पॉजिटिव है, हाँ u पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, या सर पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब ही वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ओके। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी कहीं पर भी हो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। स्पीड हर वक्त पॉजिटिव होगा, मैंने ड्रॉ किया। अब बारी है डिस्प्लेसमेंट का, वो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। एक चीज याद करो, जब फर्स्ट बोर्ड मैंने दिखाया, आज का फर्स्ट बोर्ड देखो तो याद है या नहीं तुम लोग को, मैंने ऐसे दिखाया, हाँ xt दिखाया था और मैंने vt को ऐसे ड्रॉ किया था ना। बट यहां पर तो कोई चेंजेस है सर, आपने vd को ओरिजिन से रखा था और यहां पर ऑलरेडी इसके पास 50 था, तो इसका कर्व क्या होगा, क्या ये ऊपर से आ जाएगा, नहीं भाई नहीं, ये x है, ये डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का कर्व हर वक्त कहां से शुरू होता है, डिस्प्लेसमेंट का कर्व हर वक्त 0 से शुरू होता है। यही चीज हम लोग देखेंगे अगले बोर्ड में, ओके। चलो ये बोर्ड को बहुत अच्छी तरीके से देख लो, ओके। जो डेटा दिया है वो मैं रब कर रहा हूं अभी। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, सर इसको जानने की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एट t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट, हाँ x को जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं करके पोजीशन बोल लेते, चलो मैं डिस्प्लेसमेंट को s बोलता हूं, s इज ऑलवेज 0, डिस्प्लेसमेंट को s बोलो और एक करो पोजीशन लिखो, पोजीशन को x बोलो। एट t इक्वल टू 0 इट मे और मे नॉट बी 0। एट t इक्वल टू 0 इट मे और मे नॉट बी 0। फर्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बस ये तो हो गया। नेक्स्ट सर, हाँ एक चीज याद रखो, एक ST कर्व, ST कर्व मेक्स अ रिवर्सल। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, ST कर्व का रिवर्सल आएगा। रिवर्सल का मतलब क्या सर, व्हाट इज रिवर्सल, रिवर्सल मतलब होता है ऐसा, ये देखो ऊपर से नीचे, ये हुआ पॉइंट ऑफ
रिवर्सल, हाँ ओके, या फिर और रिवर्सल क्या बोल सकते हैं, ये हुआ पॉइंट ऑफ रिवर्सल, या फिर ये हुआ तुम्हारा पॉइंट ऑफ रिवर्सल। बहुत कुछ हो सकता है भाई, बहुत कुछ हो सकता है, रिवर्सल मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ये जो पॉइंट, ये भी तुम्हारा हुआ पॉइंट ऑफ रिवर्सल, ओके। और भी हो सकता है, हाँ सर बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा ये भी हुआ तुम्हारा पॉइंट ऑफ रिवर्सल। तो एसटी कर्व मेक्स अ रिवर्सल व्हेन साइन ऑफ v instantaneous changes। नाउ इस पॉइंट को एकदम दिमाग में फिट कर लो भाई। ST curve makes a reversal when the sign of VD curve changes। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। सोच लो t इक्वल टू 0 है, ऑब्जेक्ट यहां पर था, ओके, बंदा यहां से यहां गया। अब तुमको मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम t इक्वल टू 0। हाँ t इक्वल टू 0, देखो t इक्वल टू 0 पे इस 0 था। हाँ अब सोचो यहां पर आके बंदा ने घूमना शुरू किया, यहां पर आके एक बंदा घूमना शुरू किया, अनलेस स्टेटेड, याद रखो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज measured with respect to t equal to 0। यहां पर मैं एक चीज मेंशन कर रहा हूं, unless stated मतलब इस पॉइंट के हिसाब से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, unless कुछ और टाइम फ्रेम तुम्हें बता दिया गया। unless stated displacement is always measured with respect to this point। सोचो जब बंदा ने घूमा, यहां से यहां तक का दूरी है 500 मीटर, पक्का है सर, हाँ पक्का है। यहां से यहां पर घूम लिया, अब बता दिया कि इस पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे डिस्प्लेसमेंट बताओ, पॉइंट बी पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट यहां से तुम मेजर करोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है सर, 400 हो सकता है। भाई कुछ भी हो 500 से कम है ना, इट इज लेस देन 500। Yes sir, it is less than 500। So displacement पॉजिटिव ही रहा, डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होगा, जब ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट को पार करके इस तरफ आ जाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट जाके नेगेटिव होगा, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू 0, विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो, जब A से बंदा ने टर्न बैक किया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी A में अगर इस तरफ था, वेलोसिटी इसमें चेंज हो गया। सो वेलोसिटी चेंज हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कम होना शुरू किया। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कम होना शुरू किया। कम होना शुरू किया मतलब क्या हुआ, देखो सोच लो, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, सोच लो डिस्प्लेसमेंट ऐसा था, फिर डिस्प्लेसमेंट ऐसे से कम हुआ। किस रेस्पेक्ट में कम हुआ सर, इस रेस्पेक्ट में कम, पर सॉरी इस रेस्पेक्ट से कम हुआ, बट बंदा पॉजिटिव में है, बंदा पॉजिटिव में है, ओके। पहले 500 वैल्यू था, अभी उसका वैल्यू क्या है 400 हो गया। सो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का फंडा। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिवर्सल मारता है, कब रिवर्सल मारता है, जब वेलोसिटी साइन चेंज करता है। वेलोसिटी साइन चेंज करता है मतलब व्हेन वेलोसिटी पॉजिटिव से पॉजिटिव टू नेगेटिव रिवर्सल मारता है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव रिवर्सल मारेगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या होगा सर, ये लिख देता हूं, रिवर्सल फ्रॉम हाई, रिवर्सल फ्रॉम हाई। और एक चीज देखो कि बंदा सोचो ऑलरेडी बाएं की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी सोचो नेगेटिव ही है, नेगेटिव से पॉजिटिव मारेगा तो डिस्प्लेसमेंट का जो रिवर्सल होगा वो लो से अब हाई की तरफ जाएगा, ओके, वो लो से हाई की तरफ जाएगा। ये पूरा चीज हम लोग करेंगे, एक एक करके करेंगे। यू जस्ट वेट एंड वॉच, यू जस्ट वेट एंड वॉच।
This is first of all the most important theoretical basis of displacement and a bit relationship with velocity. This you won't find in any sort of book, any sort of material. And if you understand this thing clearly, you can draw any curve. मैं कुछ भी तुमको दे दूं तुम कर लोगे. ओके, फिर मैं डिस्टेंस के बारे में आऊंगा, एक्सेलरेशन के बारे में आऊंगा. ठीक है, चलो देख लो अच्छे से. कोई भी डाउट हो कभी भी कॉल करो मुझे, व्हाट्सएप करो, पूछ लो. अगर मैं बिजी रहता हूं तो मुझे दोबारा कॉल करो. इफ आई डोंट गिव रिप्लाई टू योर व्हाट्सएप डज नॉट मीन कि आई एम इग्नोरिंग यू. हो सकता है मैं बिजी हूं, मैं कुछ और काम कर रहा हूं, तो मुझे दोबारा कॉल करो. अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं वीडियो ऑन है या नहीं. So let's move on to the next board. मैं पूरा सारा एग्जाम्पल दिखा के करूंगा. अब आया सर डिस्टेंस के बारे में. सर डिस्प्लेसमेंट मैंने जो बोल दिया वो पक्का है. हाँ, डिस्टेंस क्या है सर? डिस्टेंस कुछ नहीं है सर. डिस्प्लेसमेंट नो, वो सब छोड़ो. डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. याद रखो, इट इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड टाइम कर्व. देखो याद रखो, स्पीड टाइम कर्व. मैं वेलोसिटी से भी कर लूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट मैं जनरल लॉजिक बता रहा हूं. ओके, कैसे? इट ऑलवेज इंक्रीजेस. डिस्टेंस टाइम कर्व कभी डिक्रीज नहीं हो सकता है भाई. क्यों? तुम आगे जाओ या फिर पीछे आओ, डिस्टेंस हर वक्त क्या होगा? इंक्रीज ही करेगा. सो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ, और एक बच्चे लोग बोलेगा सर जीरो आपने लिखा. हाँ, बंदा बैठा हुआ है, काम धंधा नहीं है, बैठा हुआ है, तब जीरो हो सकता है. ओके, नहीं तो ये ऑलवेज. हाउ इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ VT curve, calculated on the area of velocity time curve. ये सब हम लोग करेंगे भाई. का ग्राफिकल अप्रोच में मुझे 2 क्लास चाहिए. ये आज पहला क्लास है. हो सकता है आज मैं बहुत कुछ कर लूं, फिर नेक्स्ट और क्लास में खत्म. फिर और 2 क्लास लगेगा मोशन अंडर ग्रेविटी, और लास्ट क्लास इज कैलकुलस बेस्ड एप्लीकेशन एंड फुल न्यूमेरिकल्स. सो हो जाएगा सर. 5 क्लास इसी महीने के अंदर ही डालेंगे और बहुत जल्दी डालेंगे. आज 5 तारीख है, तो करीब सोच लो मैं 20 सेकंड के अंदर इसको खत्म करके मोशन इन 2D और पे मूव कर लूंगा, और वेक्टर्स पे. ओके, बाय. अच्छा, नेक्स्ट सर एक एग्जांपल दिखाइए सर आप. चलो थोड़ा मार्कर को चेंज कर लेते हैं. सर इसको एग्जांपल दिखाने के पहले मैं कुछ केसेस तुमको डिस्कस कर लेता हूं. चलो सर, आपने फर्स्ट क्लास देखो, तुमको याद है अगर फर्स्ट जो क्लास था वो मेरा ऐसा क्लास था. ठीक है, सोचो ये x है और ये t है. हाँ सर, आज आपने सेकंड वाला कर्व ऐसे ही कराया था ना? हाँ, ऐसे कराया था. याद करो, यहां पर आके तुम्हारा क्या जीरो हो गया? क्या जीरो हो गया? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस जीरो हो गया था, याद है? फिर ये वाला देखो, रिवर्सल मारा ना? हाँ सर, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम and distance time curve are always continuous in nature. Continuous मतलब ऐसे जाके यहां से शुरू नहीं हो सकता है भाई. ये हर वक्त कंटिन्यूअस है, हर वक्त कंटिन्यूअस नेचर है. ओके, अब देखो सर, मैं पहला वाला ये वाले के लिए हम लोग यूज करते. हम लोग देखो यहां पर किया, बोलो यस सर, वी टी. परफेक्ट.
याद है सर? अभी तो बस ये वाला पोर्शन, इसको नाम दे दो ओ पी क्यू, और ये सेगमेंट है ओ से लेकर पी तक। अब पी से लेकर क्यू तक क्या है सर? ये चीज जानने के लिए आपको पहला क्लास में जाना पड़ेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे सर? एक बार छोटा सा रिव्यू हो जाता है। हाँ चल होने दीजिए। अगर ऐसा कर्व है, याद करो, याद करो मैंने क्या कहा था, ये y था और ये x था। याद है कि अगर ऐसा कर्व है तो इसका स्लोप कैसा होगा? dy। सर मैंने एक चीज कहा था, स्लोप अगर 0 है और ये नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ओके, स्लोप क्या है? 0 से लेकर नेगेटिव, 0 से लेकर नेगेटिव, ऐसा। मतलब अगर ये तुम्हारा ऐसा हुआ, हाँ सोचो ऐसा, मतलब इनिशियली ये पैरेलल था, अभी वो ऐसा, ठीक है। और भी एक कर्व मैंने दिखाया था, हाँ सर एक और कर्व आपने दिखाया था, ऐसा दिखाया था, याद है? हाँ, तो इसका मतलब सर यहां पर इनिशियली स्लोप क्या था? अच्छा इसको यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर ऑलरेडी स्लोप नेगेटिव ही था, ओके। अभी जा रहा है किस तरफ? जा रहा है 0 के तरफ। सो इनिशियली बंदा नेगेटिव था, जा किस तरफ रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। तो ये हुआ तुम्हारा बेसिक चारों चीज। ये पहला क्लास में हम लोग कर चुके थे, याद है? फर्स्ट क्लास वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स। अब सर ये वाला सेगमेंट को देखो, ये वाला, यहां पर वेलोसिटी 0 आया था, फिर ये वाला कर्व इससे मैच होता है, यस सर। तो इसका मतलब 0 से किस तरफ स्लोप जाएगा? सर अगर कर्व ये है तो स्लोप 0 से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये कर्व है तो स्लोप क्या होगा? 0 से नेगेटिव की तरफ। सो यहां पर 0 से नेगेटिव की तरफ कंटिन्यूएशन, ओके, कंटिन्यूएशन होगा 0 से नेगेटिव की तरफ के। हाँ ना ना हाँ हाँ আপনি নিচে আছেন তো? আমি আসছি। Okay, so this is the basic things, okay. So first of all we have learned all the segment. If this is the curve, इसका स्लोप कैसा होगा? ये। अब देखो ये हुआ ऐसा, अगर मैं कहूं भाई इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है सर? इसका स्लोप नेगेटिव है। कैसे तुमको पता चला नेगेटिव है? क्योंकि ये बंदा डिक्रीज कर रहा है, ये बंदा खुद डिक्रीज कर रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इसका स्लोप क्या है? ये खुद बंदा ऊपर जा रहा है, तो सर इसका स्लोप है पॉजिटिव, इसका स्लोप है पॉजिटिव। सो अब हम लोग क्या करेंगे? पूरा सबको हटाएंगे और एक चार्ट तैयार करेंगे सबका, एक एक करके। चलो कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो सर आप x t के हिसाब से कीजिए, टाइम और x मतलब डिस्प्लेसमेंट, पकड़ लो सर। सर एक और चीज ऐसा ना, ये बहुत बढ़िया चीज है सर। ये जो चीज है देखो, तुम थोड़ा डिफरेंस को देखो। मैं एक और ग्राफ तुमको ड्रॉ कर रहा हूं, डिफरेंस को नोट करो। अरे वाह सर, इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ सर डिफरेंस है, इसको नोट करो। अच्छा चलो इसको भी मैं अलग से कर देता हूं, फिर तुम लोग के। चलो इसको अलग से करो सर। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है सर, क्या? अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ, ये देखो 0 लाइन को टच करने के बाद गया और ये एकदम डायरेक्ट ऐसा चला गया। इसका मतलब क्या हुआ सर? इनिशियली वेलोसिटी देखो, अगर तुम लाइन ड्रॉ करोगे वेलोसिटी 0 है, अगर तुम इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इनिशियली टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका इनिशियली ऑलरेडी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। इसका इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है और इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी।
नाउ गुड, स्लोप इंक्रीजेस, यस सर, टाइम और वेलोसिटी क्या होगा, ऐसा होगा, गुड। नाउ सर इसका क्या होगा, सर ये देखिए यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से ऊपर की तरफ। अब देखो वेलोसिटी दोनों ऐसा है, ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर आपका टाइम और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ग्रेटर देन जीरो, एक्सीलरेशन ग्रेटर देन जीरो, वाह गुड। सर एक और कर्व, चलो हो जाते हैं सर, ऐसा कर्व एक्स टी, सर इसका मतलब क्या था आपका, वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो, यस सर, वेलोसिटी डिक्रीज किया सर, वेलोसिटी डिक्रीज किया मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, वेलोसिटी डिक्रीज किया मतलब एक्सीलरेशन क्या है भाई आपका, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट सर सोच लो, देखो ये x है, x मतलब पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है। तो यहां पर मतलब अगर मैं सोचो अगर ऐसा कर्व दूं तो ये कर्व तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वाला कर्व नहीं है भाई, ये कर्व तुम्हारा क्या है, ये वाला पोजीशन है, ये वाला क्या है, पोजीशन वाला कर्व है। तो इसको याद रखो, ये जो कर्व मैं ड्रॉ किया ये पोजीशन वाला कर्व मैंने ड्रॉ किया। तो अब मैंने क्या सिखाया था, ऐसे सर, ऐसे मतलब क्या हुआ सर, वेलोसिटी क्या है सर, वेलोसिटी दो टाइप ऑफ कर्व हो सकता है, चलो इसका भी दोनों कर्व मैं दिखा दूं। एक हो सकता है ऐसा, मतलब इनिशियली वेलोसिटी क्या है भाई, इनिशियली वेलोसिटी क्या है, जीरो है, देखो, और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और एक कर्व हो सकता है कि डायरेक्टली बंदा ऐसा है, ऐसा, अच्छा थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ऐसा, मतलब ऑलरेडी वेलोसिटी इनिशियली क्या है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियली तुम्हारा वेलोसिटी क्या है भाई, ऑलरेडी तुम्हारा वेलोसिटी नेगेटिव है और भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है। हर कर्व को ध्यान से देखो, ये देखो टच करके गया और ये देखो टच करके नहीं गया। अब दोनों का एक्सीलरेशन लॉजिकली क्या होगा सर, बंदा डिक्रीज किया मतलब एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां पर भी बंदा ने क्या किया, डिक्रीज किया, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब लास्ट वाला कर्व सोचो, ये ऐसा था, ऐसा, ये x ये t। अब यहां पर सर एक ही केस है सर वेलोसिटी इनिशियली नेगेटिव था और जा किस तरफ रहा है, जा जीरो की तरफ रहा है। और यहां पर क्या है, यहां पर एक्सीलरेशन सर आपका पॉजिटिव की तरफ, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तभी तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तभी वेलोसिटी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वेलोसिटी कुछ भी हो, अगर तुम्हारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुआ तो वेलोसिटी उस पॉइंट से लेकर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। ओके, सो दिस आर द ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ द कर्व। इसके बाहर कर्व नहीं होगा। तुमको अगर ये चीज पता चल गया सो यू कैन डू इट विद इन अ सेकेंड। ओके, सो I won't stop over here. Okay, I am breaking the lectures part by part. Breaking the lectures part by part. In the next part of my lecture, I will club all the points. I will club all the points with this 6. Okay, so this is the first class of our graphs. Okay, मैं कुछ और करा दूं, हाँ थोड़ा और करा देता हूँ, चलो थोड़ा और करा के इसको एंड करता हूँ। बस इसको याद रखो, हाँ ना, अभी थोड़ा आराम से करते हैं सर। चलिए एक काम करते हैं, बहुत ही आराम से करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल केस 1 जो तुमको अच्छा लगे। देखो टाइम t इक्वल टू 0 है, इनिशियली तुम्हारे u के पास है 50, हाँ, और एक्सीलरेशन इस तरफ है
सोचो -10। तो अब देखो u है तुम्हारा पॉजिटिव, a है तुम्हारा नेगेटिव। सर इतना a नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? a नेगेटिव का मतलब हुआ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। हो गया। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कैसे होता है। v इज इक्वल टू u प्लस ad, तुम्हें पता है v के जगह क्या लिखा हो, 50 लिखो प्लस -10 इंटू टी, 50 माइनस 10t। देखो क्या हो सकता है। हाँ सर ये बन गया। अब लॉजिकली बताओ क्या होगा? कुछ देर जाने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 कब होगा? जब टाइम का वैल्यू होगा 5 सेकेंड। मतलब यहां जाके जब टाइम 5 सेकेंड होगा, यहां पर आके वेलोसिटी रुक जाएगा, 0 हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा। बट अगर एक्सीलरेशन तुम्हारा रहा, अब यहां से क्या होगा? बंदा रिवर्स करेगा। ओके, आफ्टर t equal to 5 seconds, the object will reverse its direction. The object will reverse its direction. Reverse its direction का मतलब क्या हुआ? v इंस्टेंटेनियस का वैल्यू क्या हो गया? क्या हो गया सर? नेगेटिव हो गया। v इंस्टेंटेनियस का वैल्यू क्या हो गया सर? नेगेटिव हो गया। देखो बाएं की तरफ जाएगा, बाएं की तरफ जाएगा मतलब नेगेटिव। ओके, सो ये हुआ इससे। सो अब वेलोसिटी का एक कर्व से ड्रॉ कर लेते हैं। बट एक चीज यहां पर, स्पीड अगेन इंक्रीजेस फ्रॉम 0। स्पीड देखो इंक्रीज किया, और इस केस में स्पीड डिक्रीजेस टू 0। स्पीड पॉजिटिव से डिक्रीज हुआ। सर एक एनालिटिक्स बताओ सर, वेलोसिटी का एक एनालिटिक्स करते हैं। चलो हर सेकंड का। पहला था 50, फिर आया 40, 30, 20, 10, 0, फिर पीछे की तरफ गया -10, -20, -30, -40 डॉट 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 चलता गया। सो क्या करे सर? किस चीज को ड्रॉ करे? भाई एक काम करो, तुम जब ड्रॉ कर रहे हो ना, तो पहले काम करो, तुम वेलोसिटी को ड्रॉ करो। वेलोसिटी को अगर तुम ड्रॉ कर सकते हो तो तुम सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो, हर सब कुछ। कैसे? देखो सर इस इक्वेशन को ड्रॉ करना है ना सर। देखो v इक्वल्स टू 50 माइनस 10t कैसे ड्रॉ करना है? टाइम जब 5, v तब 0, यहां से शुरू होके ऐसा। यस सर, ये था 5, ये था 50, ये v, ये t। ब्यूटीफुल। अब सर एक काम करते, सर स्पीड टाइम को ड्रॉ करते, स्पीड और टाइम को ड्रॉ करते। सर मैंने क्या बताया? स्पीड हर वक्त पॉजिटिव होता है, स्पीड हर वक्त पॉजिटिव होगा। तो देखो ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें वेलोसिटी पता है, यही चीज को हर वक्त तुम पॉजिटिव में ड्रॉ करो। मतलब जो पॉजिटिव में है उसको रहने दो, और जो नेगेटिव में है ना उसको मिरर से रिफ्लेक्शन कर दो। मतलब ऐसा बना, ये हो जाएगा स्पीड टाइम। तुम्हारा वेलोसिटी ऐसा था, तुम्हारा स्पीड ऐसा हो गया। देखो सर अब बारी है एक एक्सीलरेशन का, टाइम और एक्सीलरेशन। देखो थ्रू आउट द मोशन एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है? एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है सर? -10 थ्रू आउट द मोशन। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू -10। ये टाइम 5 सेकेंड हो या फिर 10 सेकेंड हो, ये हुआ -10। अब आएगा तुम्हारा टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का कर्व। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। देखो याद करो, वेलोसिटी डिक्रीज किया, उसका उल्टा वाला कर्व क्या होगा? लास्ट बोर्ड में मैंने दिखाया था सर, ऐसा। हाँ याद है? ऐसा, एकदम करेक्ट है। फिर मैंने बोला वेलोसिटी 0 से नेगेटिव जा रहा है, 0 से नेगेटिव जा रहा है, तो कर्व कैसा होता? याद करो पिछले बोर्ड मैंने कुछ ऐसा दिखाया था तुमको, ऐसा दिखाया था। हाँ सर दिखाया था, हाँ या ना सर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर? 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। ये अगर 1 से t है तो ये क्या हुआ? vt हुआ ना। बस तुम्हें देखना है 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो तुम्हें ये कर्व उठाना पड़ेगा। और कहां पर बिठाना पड़ेगा सर? यहां पर बिठाना पड़ेगा। क्यों?
मैंने तुम्हारे को ये कहा था, आई हैव स्टेटेड यू कि डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम आर कंटिन्यूअस कर्व. याद रखो, ST curve are always continuous in nature. हर वक्त क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा. चलो एक्सेलरेशन को थोड़ा यहां पर ड्रॉ कर देते हैं. हर वक्त कंटिन्यूअस होगा मतलब ऐसा होगा कर्व. तो रिवर्सल कहां पर हुआ सर? सर रिवर्सल हुआ टाइम जब 5 सेकंड में था. अब देखो टाइम जब 5 सेकंड में वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज किया, इसीलिए रिवर्सल हुआ. इसीलिए रिवर्सल हुआ. और वेलोसिटी पूरा नेगेटिव, भाई पूरा डिक्रीज किया, एक्सेलरेशन फुल नेगेटिव. अब बारी है सर डिस्टेंस टाइम. ये डिस्टेंस टाइम कैसे ड्रॉ किया जाता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूं. ये लास्ट डिस्टेंस, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है और डिक्रीज तो कर ही नहीं सकता. डिस्टेंस हर वक्त इंक्रीज करेगा. क्या होगा सर, यही कर्व को देखो, ये जो नीचे मुड़ा ना, इसको आप ऊपर कर देना. ये जो आपका नीचे मुड़ा था, इसको आप क्या कर दो, ऊपर कर दो, ये डिस्टेंस बन जाएगा. मतलब ऐसा फिर ऐसा. डिस्प्लेसमेंट के टाइम में ये ऐसा हुआ था और ये ऊपर चला गया, ये बन गया आपका डिस्टेंस. सो आई फील कि दिस एग्जांपल इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल एवर यू विल सी. दिस इज अ conceptual class, so I will assume this thing, you go through this class, whatever, I don't know, maybe it is a 40 minutes class or 45 minutes class, I don't know. You go through this class well. I will be posting the next lecture very soon. Okay, within 3 to 4 classes, 3 to 4 days I will be posting another lecture. So you have to go through this lecture well. Before going through this lecture, please go through the lecture number 1 and 2. Okay, chalo, bye bye.